हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है वीडियो 13 ऑफ आवर डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव। कल महाशिवरात्रि थी, इसलिए टुडे वी आर बैक विद अ 20 क्वेश्चन वीडियो। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स सी क्वेश्चन 1. Which regulatory authority introduced the Bima ASBA system that ensures financial security by keeping funds in the account, earning interest until the policy is accepted recently? हाल ही में किस विनियामक प्राधिकरण ने बीमा एस्बा प्रणाली शुरू की है जो पॉलिसी स्वीकार होने तक खाते में धनराशि रखकर ब्याज अर्जित करके वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है? If you have been following our videos, then this is a slightly repeated question. An easy version for the first question of the day, the answer is IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. वैसे भी जो इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेशन है जितनी भी हमारी कंट्री में वो मोस्टली IRDAI ही करती है. Moving to question 2, how much penalty did the RBI impose on Citibank for non-compliance with large exposure reporting and delayed data corrections? बड़े जोखिम रिपोर्टिंग में गैर अनुपालन और डेटा सुधार में देरी के लिए आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया? A very factual question, but these questions are important for your exams such as RBI, SBI, NABARD, etc. The answer is 39 lakh penalty. Question 3. Who has been appointed as the new director of the Institute of Economic Growth? आर्थिक विकास संस्थान ने नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? What do you think is the right answer? The answer is Professor Sabyasachi Kar. Question 4. Which corporation did HAL, Hindustan Aeronautics Limited, recently sign an MOU with to enhance aerospace innovation through research, skill development and technology advancements? HAL ने हाल ही में किस निगम के साथ अनुसंधान, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से एरोस्पेस नवाचार को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Basically MOU of HAL and which other institution for aerospace innovation? The answer is Defense Institute of Advanced Technology, DIAT. Who has been awarded an honorary knighthood by the UK for his role in strengthening India-UK business ties? भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूके द्वारा मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? KBE, honorary knighthood. The answer is Sunil Bharati Mittal. He is the founder and owner of Bharti Enterprises and इनको past में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है and now he has been given the honorary knighthood by UK, United Kingdom. Question 6. Which agency conducted the Sagar Kavach security exercise along West Bengal's coastline on February 21-22, 2025 to enhance coastal security? तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एजेंसी ने 21-22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर सागर कवच सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? What do you think is the right answer? Sagar Kavach security exercise. The answer is Indian Coast Guard. यहाँ पर आर्मी एंड एयरफोर्स को हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते थे बिकॉज सागर कवच है तो समथिंग रिलेटेड टू दी ओशन ही होगा. सो आइदर नेवी होता या इंडियन कोस्ट गार्ड होता एंड द राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड. क्वेश्चन 7 नाउ. Which airport became the first in India to win the सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार Golden Trophy at the NSCI Safety Awards 2024? NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? The airport that has been awarded for its security policies, the answer is Manohar International Airport. And where do you think is it situated? It's situated in Goa. Okay. Question 8 now. Under which program has
Bisleri partnered with the ASI Archaeological Survey of India to restore historic water bodies. ऐतिहासिक जल निकायों को बहाल करने के लिए बिस्लेरी ने किस कार्यक्रम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ साझेदारी की है? What do you think is the mission? The answer here is Adopt a Heritage 2.0 program. यहाँ पे अलग तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि Adopt a Heritage 2.0 प्रोग्राम के अंडर ASI ने किसके साथ पार्टनर किया है फॉर रिस्टोरिंग हिस्टोरिक वाटर बॉडीज? देन द आंसर वुड बी बिस्लेरी. एंड अगेन यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक से आई थिंक स्वच्छ भारत एंड जल शक्ति अभियान को हटाया जा सकता था. द ओनली कंफ्यूजिंग वन कुड हैव बीन द नेशनल हेरिटेज रिवाइवल स्कीम, बट द राइट आंसर इज Adopt a Heritage 2.0 program. Moving to question 9, who previously held the record for the fastest to 14,000 ODI runs before विराट कोहली? कोहली से पहले सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम था? I think a very easy question for all the cricket fans and followers. The answer is Sachin Tendulkar. So Sachin Tendulkar had made 14,000 runs in your ODI in only 350 innings, whereas Kohli has now beat him by completing the same record in only 287 innings. Okay. Question 10. Who has been appointed Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया है? If you've been following such news, then you know the answer is शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं रिसेंटली, एंड नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है वो बेसिकली जो आपका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है PMO, उसमें हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है. एंड यूजुअली जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हीं को यहाँ अपॉइंट किया जाता है. मूविंग टू क्वेश्चन 11, विच कंपनीज IPO raised rupees 27,870 crore in 2024, marking India's largest IPO of the year. किस कंपनी के IPO ने 2024 में 27,870 करोड़ रुपए जुटाए, जो भारत का साल का सबसे बड़ा IPO है? इकोनॉमिक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, एंड द आंसर इज Hyundai Motors. Hyundai Motors जो है उन्होंने IPO रेज किया है सबसे बड़ा 2024 का. IPO क्या होता है? IPO रेफर्स टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अपने शेयर्स जो हैं उसको रिलीज करती है. स्टॉक मार्केट में जो फर्स्ट टाइम शेयर्स रिलीज किए जाते हैं उनको IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है. एंड वाया दीज स्टॉक्स फॉर द रिलीज ऑफ स्टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक कंपनी मानी जाती है. फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी इट कम्स टू बी नोन एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. Moving to question 12, what Guinness World Record attempt is part of the 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल? 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कौन सा प्रयास शामिल है? What do you think is the answer? Guinness World Record in the 51st Khajuraho Dance Festival for the longest dance performance of the day. Basically खजुराहो टेम्पल जो है वो कहाँ स्थित है? MP में, मध्य प्रदेश में. और यहाँ पर 24 आवर्स 24 घंटे का डांस मैराथन होगा, विच विल बी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डांस परफॉर्मेंस रिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैंपेन इन इंडिया अचीव्ड 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन 2025? भारत में किस अभियान ने 2025 में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं? Guinness World Records are also important for your exams, and the answer here is देश का प्रकृति परीक्षण अभियान. इसमें maximum number of pledges taken together या फिर longest
फोटो या वीडियो एल्बम्स बनाने का, ऐसे 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम हुए हैं अंडर द देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। क्वेश्चन 14, व्हाट टाइटल डिड सौरव घोषाल विन इन हिज कमबैक फ्रॉम रिटायरमेंट? रिटायरमेंट से वापसी करते हुए सौरव घोषाल ने कौन सा खिताब जीता है? द राइट आंसर इज ऑक्टेन सिडनी क्लासिक। सो बेसिकली सौरव घोषाल जो हैं वो स्क्वॉश प्लेयर हैं। स्क्वॉश एक गेम है, टेनिस जैसी होती है, जिसमें इंस्टेड ऑफ एन ओपोनेंट बॉल को वॉल की तरफ एम किया जाता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच एंड प्ले। तो सौरव घोषाल जो एक स्क्वॉश प्लेयर हैं, उन्होंने पहले तो रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन उन्होंने फिर कम बैक ले लिया फ्रॉम हिज रिटायरमेंट, एंड कम बैक करते ही उन्होंने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक टाइटल जीत लिया। Question 15, which classical dance form is Mayadhar Raut, who recently passed away, associated with? मायाधर राउत, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े थे? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली? द आंसर इज ओडिसी। सो बेसिकली मायाधर राउत को फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहा जाता है, एंड नॉट ओनली this he has also been awarded the पद्म श्री, और साथ ही जो कला विकास केंद्र है उसके को-फाउंडर हैं ये, और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो क्लासिकल डांसेस में, उससे भी सम्मानित किया गया है, एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही इज एसोसिएटेड विद द ओडिसी डांस। क्वेश्चन 16, which initiative does the ChinaSat 10R satellite launched by China on February 22, 2025 support? चीन द्वारा 22 फरवरी 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले चाइनासैट 10R उपग्रह किस पहल का समर्थन करता है? What does it support? Which initiative is it supporting? Which initiative is it launched for? The answer is BRI, Belt and Road Initiative. चाइना का सपना है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा अपना ट्रेड रूट्स जो हैं वो वर्ल्ड ओवर फैला दें, और इसी के चलते उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना सैट 10R सैटेलाइट को उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। क्वेश्चन 17, विच टीम डिड मोहन बागान डिफीट टू विन देयर सेकंड कंसेक्यूटिव ISL विनर्स शील्ड? मोहन बागान ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार ISL विजेता शील्ड जीती? ISL है इंडियन सुपर लीग, जो कि आपकी फुटबॉल की बहुत ही बड़ी गेम है इंडिया की, एंड द आंसर इज ओडिशा फुटबॉल क्लब। सो मोहन बागान जो टीम है ये वेस्ट बंगाल बेस्ड एक फुटबॉल क्लब है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब माना जाता है, और 1911 में इसने ब्रिटेन की एक टीम को भी हरा दिया था एक फुटबॉल चैंपियनशिप में। तो तब से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत माना जाता है, और इस साल इंडियन सुपर लीग में दूसरी दफा सेकंड कंसेक्यूटिव विनर्स शील्ड इन्होंने जीत ली है। किसको हराकर? ओडिशा फुटबॉल क्लब को हराकर। क्वेश्चन 18, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू सेफगार्ड विटनेसेस इन सीरियस क्रिमिनल केसेस? हाल ही में किस राज्य ने गंभीर आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? बेसिकली जो क्रिमिनल केसेस में विटनेस होते हैं उनको बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए हरियाणा ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया है, सो दैट विटनेसेस जो हैं वो किसी भी क्रिमिनल केस में अपनी गवाही देने से कतराए नहीं। क्वेश्चन 19, रिसेंटली इंडिया हैज सेट अप अ न्यू हॉटलाइन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन? हाल ही में भारत ने सीमा पार अपराध की रोकथाम बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक नई हॉटलाइन स्थापित की है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश? The answer here is बांग्लादेश। Especially after the regime change, बांग्लादेश से हमारे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने एक न्यू हॉटलाइन स्थापित की है।
Last question, who has recently been appointed as the FBI Deputy Director by President Donald Trump? हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? Please do not be confused because it's not asking the director of FBI. Director of FBI हमने पिछली वीडियो में देखा था कौन है, काश पटेल, लेकिन डेप्यूटी डायरेक्टर है Dan Bongino. So these were our 20 questions of the day. You have to follow us on all our social media channels for more such updates. If you liked this video, then subscribe to our YouTube. And for all our PDFs in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram channel. Link is in description. Thank you. Keep learning. Bye-bye.